Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So, yesterday we were doing the basic accounting terms, and continuing with that terms, today we have another topic, another term, which is expenditure. Expenditure. What is expenditure? Expenditure is the disbursement of cash or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring any asset, good, or services. Expenditure means any kind of payment. If we are doing expenditure means any kind of payment which we are doing in our business so as to acquire any asset, goods or service, that is known as expenditure. यानी कि हमारा खर्चा, किसी भी तरह का हम बिजनेस में खर्चा कर रहे हैं, किसी भी तरह का हम बिजनेस में खर्चा कर रहे हैं जिससे हमारे बिजनेस को कोई भी बेनिफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कि हमने कोई एसेट एक्वायर करना है, कोई गुड्स है, सर्विस है, तो एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसीप्ट ऑफ benefit is known as expenditure. So in expenditure we have three parts. First is capital expenditure, second is revenue expenditure, and third is deferred revenue expenditure. Capital expenditure. Any expenditure which is incurred in incurring or increasing the value of fixed asset is known as capital expenditure, such as the amount spent on the purchase of building. Example, amount spent on the purchase of building. So, amount spent on building. Building is a fixed asset. Any expenditure which is done on fixed asset is known as capital expenditure. Such expenditure yield higher and long period of benefits and hence return in assets. So these are those expenditure which are done on fixed assets and they are written in the asset. Done. Second expenditure are the revenue expenditure. Any expenditure the benefit of which will be received in one accounting year is known as revenue expenditure. Example, salaries paid, salaries, rent, all these expenditure which a business enterprise do and the benefit of which is received within one accounting year is known as revenue expenditure. So all these expenditure are always debited to the trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account में ये हमेशा डेबिट होते हैं. Okay? And these expenditure never results in increase in earning capacity of the business, but it only helps in maintaining the earning capacity of the business. ठीक है बच्चों? And third one is the deferred revenue expenditure. These are those expenditure which are revenue in nature, but the benefit is received over a number of years time period. So it means in revenue we used to do that the benefit of which will be received in 1 year and are of revenue nature, but here it is of revenue nature but the benefit will receive in a lot number of years. ठीक है बच्चों? So let me revise it again. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम किसी भी एसेट के ऊपर करते हैं जिससे हमारे बिजनेस को बेनिफिट मिलता है कि हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है. लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो बेनिफिट हैं जिनका बेनिफिट वो एक्सपेंडिचर हैं वो इसलिए किए जाते हैं ताकि उनसे होने वाला बेनिफिट हमें विद इन वन अकाउंटिंग ईयर रिसीव हो जाए. एंड थर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो रेवेन्यू इन नेचर तो हैं लेकिन उनका बेनिफिट बहुत ही नंबर ऑफ ईयर्स में जा सकता है. ठीक है जी. तो ये इट इज़
इट कैन बी कन्वर्टेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसीलिए इसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीन्स कि ये तो हो गए जो शॉर्ट टर्म, जैसे कि हमारे इसमें सैलरी पे कर दी, ये फिक्स एसेट के ऊपर होगी। तो ये वाले एक्सपेंडिचर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे होते हैं और उसमें डेबिट साइड में आते हैं। डेबिट हम खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑल एक्सपेंसेस विल ऑलवेज विल बी डेबिटेड, all expenses and losses will be debited. And revenue expenditure, revenue deferred revenue expenditure, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, इसकी एक एग्जांपल है बच्चों। हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर हमने 2 लाख का खर्चा किया, लेकिन उसका पहले साल में, उसका फर्स्ट ईयर में सिर्फ 50,000 का हमें बेनिफिट मिला। अभी 1,20,000 का बेनिफिट मिलना अभी बाकी है। ठीक है जी। तो जो वो 50,000 है उसे तो हम रेवेन्यू नेचर में चार्ज कर देंगे, मतलब उसे तो हम P&L में पोस्ट कर देंगे, लेकिन जो 1.5 लाख अभी हमें बेनिफिट नहीं मिला उसे हम क्या कर देंगे, अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है। ऐसे ही जब सेकेंड ईयर वो 50,000 कन्वर्ट हो गया 1 लाख में, कि हमें सेकेंड ईयर में 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा, तो हम लोग उस 1 लाख को रेवेन्यू में डाल देंगे और 2 लाख में से बचा हुआ 1 लाख, 2 लाख में से 1 लाख का बेनिफिट मिल गया और 1 लाख बच गया है, और उस 1 लाख को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है बच्चों। नाउ कमिंग अप विद नेक्स्ट टर्म वी हैव एक्सपेंसेस। व्हाट इज एक्सपेंसेस? Expenses are the cost incurred in producing or selling the goods or services. Example, salary. Expenses means कोई भी खर्चे जो हम कर रहे हैं किसी भी गुड्स को, रॉ मटेरियल से हमने किसी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है। तो जब हम उन्हीं कन्वर्शन के दौरान जो एक्सपेंसेस करते हैं, जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, उन खर्चों को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है जी। जैसे हमने कोई भी रेंट पे किया है, रेंट किसका पे किया, हमने एक रूम लिया था किराए पे, उस रूम का रेंट पे किया है। तो उस रूम का जो रेंट है वो हमारे लिए खर्चा है, और वो अगर हमारे पास रूम नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, फिनिश गुड्स कैसे बनाएंगे। तो वो हमारा खर्चा है जिसकी हेल्प से हम अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर बाद में सेल कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड आता है इनकम। Income. What is income? Income is the amount received from the sale of goods. इनकम में हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले हमने लिखा है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्सपेंसेस, and the surplus of revenue over expenses is income. तो मतलब कि जो हमें गुड्स को बेच के पैसा आया उसे हम कहते हैं, जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। लेकिन उस गुड्स की कॉस्ट क्या थी, वो क्या है, एक्सपेंसेस। गुड्स से हमें पैसा जितना आया और जितनी उसकी कॉस्ट थी, जितना पैसा कॉस्ट से ज़्यादा आया वो क्या हो गया, सरप्लस इज नोन एज इनकम। तो इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सपोज हमारे पास गुड्स थे 4 लाख के, हमने उनको सेल कर दिया 5 लाख में, तो हमारी जो सेल है वो क्या है, रेवेन्यू। जो गुड्स थे जितने अमाउंट के थे वो क्या थे, हमारे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। और जो हमें ज़्यादा पैसा सेल करके मिला है, सरप्लस। सरप्लस इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज 5 लाख माइनस 4 लाख, दैट इज 1 लाख। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्या है, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ
total revenue over total expenses of a business enterprise from an accounting period. एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी टोटल ऐसे रेवेन्यूज़ हुए हैं, जितनी भी टोटल सेल्स हुई हैं और जितने भी टोटल खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं उनको बनाने में, उनको उसका जितना रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होगा टोटलिटी में, वो क्या हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, वो क्या हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। और ये हम पूरे और पूरे एक अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग पीरियड का लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, एक साल के दौरान जितनी भी टोटल रेवेन्यू हुई माइनस जितने भी टोटल एक्सपेंसेस हुए, द नेट अमाउंट दैट वी गेट इज नोन एज द प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर, दिस इज द मेन लाइन। यही प्रॉफिट ओनर के पास जाता है। हमने पूरा साल भर, पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी एक्टिविटीज़ की, उनके एट लास्ट में हमारे पास जितना प्रॉफिट बचा वो उसी ओनर्स की इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हो जाएगा। उन्हें जितना बेनिफिट मिला वो उनकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है जी, इन्हीं प्रॉफिट्स को पाने के लिए हमारा बिजनेस चल रहा है। और अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है gain. Next term we are having is the, what is gain? Gain is the monetary benefit, profit or advantages from events or transaction which are incidental to the business. Gain क्या हुआ? हमें कोई भी मनी फॉर्म में कोई भी बेनिफिट मिला, कोई भी प्रॉफिट मिला, कोई एडवांटेज मिला किसी भी इवेंट और ट्रांजैक्शन में से जो बिजनेस में हुई है। जैसे हमने किसी चीज़ को बेचा, जैसे कि हमने किसी भी चीज़ को बेचा और उसको बेचने में हमें जो खर्चा, जो हमें जो फालतू का पैसा मिला वो क्या हुआ? गुड्स को सेल करके सरप्लस। लेकिन हमने कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और उस एक्टिविटी से हमें कोई इनाम मिला, बेनिफिट हुआ, तो वो क्या हुआ हमारा? गेन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल, अगर एक बिल्डिंग थी 10 लाख की और उसे हमने 12 लाख में बेच दिया तो हमें 2 लाख जो गेन हुआ है वो उसकी सेल से हुआ है और उसे हम कहते हैं गेन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। एक हुआ गेन, एक हुआ इनकम। गेन मैंने बोला कि हमें किसी भी एसेट को, किसी भी चीज़ को बेच के जितना फालतू पैसा मिला है वो हमारा गेन हो। और हमने जो इनकम है वो भी बोली कि इनकम भी हमने जितना उसको सेल किया, गुड्स किसी भी चीज़ को सेल किया, उससे जितना भी एक्सेस हमें पैसा मिला वो हमारा इनकम हुआ। लेकिन द मेन डिफरेंस इज, गेन जो है हमें एसेट्स के ऊपर मिलता है। किसी भी एसेट्स को वो ज़्यादा में बेच दिया तो हमें गेन हुआ, वो क्या है? गेन। और अगर हमने किसी भी गुड्स को ज़्यादा में बेच दिया है तो वो क्या हो गया? हमें इनकम। ठीक, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द गेन्स एंड इनकम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लॉस। लॉस में हमारे पास दो तरह के लॉसेस हम इसमें अकाउंट करते हैं। फर्स्ट इज द लॉस विच इज द रिजल्ट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, जो हमने अभी किया था कि अगर हमारे रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंसेस होंगे तो हमें क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा, हमें बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमारे पास अगर टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो चुके हैं और हमारी रेवेन्यू जो है वो कम है तो हमें जो लॉस सफ़र किया है उसे हम यहाँ पे लॉस का मतलब हम ये लेते हैं यहाँ। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन फर्म रिसीव नो बेनिफिट्स टू सम एक्टिविटी और फैक्ट। अगर किसी फर्म ने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, किसी भी एक्टिविटीज़ में फर्म का रोल था लेकिन फर्म को कोई बेनिफिट नहीं मिला तो वो क्या हुआ? फर्म का लॉस। एग्जाम्पल इसमें क्या है? फैक्ट में क्या है? टू सम फैक्ट, दैट इज
लॉस ड्यू टू फायर, उसे नुकसान हो गया, फायर हो गया, किसी भी फैक्ट के कारण फर्म को लॉस हुआ, दैट इज टर्म्ड इन लॉस. The next thing we have to do in this topic is the purchases. What is purchases? The purchases is always used only for the purchase of goods in which the business deals. Purchase हमेशा वर्ड हम गुड्स के लिए यूज़ करते हैं, वो गुड्स जिसमें एक बिजनेस डील करता है. सपोज हमारा बिजनेस जो है कपड़ों का है, तो जो कपड़ों का डीलर है, जो वो कपड़ा लेके आएगा, परचेज करके लेके आएगा अपने बिजनेस में सेल करने के लिए, उस कपड़े को हम कहेंगे परचेज, उस हम गुड्स को क्या कहेंगे, परचेज. अगर वही कपड़े वाला दुकानदार अपने बिजनेस में फर्नीचर ले आए, जो कि उसका बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी नहीं है, उसका बिजनेस कपड़ों का है, लेकिन वो फर्नीचर ले आए, तो वो फर्नीचर जो है वो बिजनेस का एसेट होगा, ना कि परचेज होगा. परचेज हमेशा वो आइटम होगी जिसमें बिजनेस डील करता है. अगर मैं एक कन्फेक्शनरी की दुकान है, उसमें जो सामान मेरे को चाहिए, अगर मैं वही सामान लेके आऊँ सेल करने के लिए, तो हम उन सामान को कहेंगे परचेज. और वैसे ही हमारे पास टर्म आती है परचेज रिटर्न. व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, दैट इज रिटर्न आउटपुट. और अगर हम गुड्स को परचेज करके लेके आए थे, लेकिन किसी कारण हमें वही गुड्स को वापस भेजना पड़ा सप्लायर्स को, देन वी सेज परचेज आर रिटर्न्ड, देन परचेज रिटर्न. अकाउंट्स में हम उसे कहते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स. आउटवर्ड्स मीन्स बिजनेस में से बाहर भेज दिया, अब बिजनेस का पार्ट नहीं रहा वो स्टॉक. ठीक है जी. ऐसे ही हम वर्ड कहते हैं सेल. परचेज एंड सेल आर द वर्ड्स बोथ यूज्ड फॉर ओनली एंड ओनली गुड्स. तो अगर हमने गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया है, गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफ़र किया है फॉर अ प्राइस, हमने प्राइस के बदले अपने गुड्स को बेचा है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र की है, तो उस ट्रांजैक्शन को, उस ट्रांसफ़र को कहते हैं सेल. सेल भी हमेशा गुड्स की होगी, वही आइटम जिसमें एक बिजनेस डील कर रहा है. जैसे हम यहाँ पे क्लोथ के ओनर थे, क्लोथ शॉप के, तो अगर वही ओनर अपने क्लोथ को जिसको परचेज करके लेके आया था उनको सेल कर देगा, तो वही जो सेल है उसे हम क्या कहते हैं, उन्हीं चीज़ों को जिनकी वो सेल करेगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्लोथ सोल्ड, हम कहेंगे अकाउंट्स में सेल वर्ड. ठीक है जी. अगर उसने जो यहाँ पे फर्नीचर ला के बेचा, तो फर्नीचर एक एसेट था, तो वो फर्नीचर की सेल होगी. यानी कि परचेज और सेल हमेशा गुड्स की होती है. गुड्स मीन्स वो आइटम्स जिसमें बिजनेस डील कर रहा है. सेल कभी भी उन आइटम्स की नहीं होगी जो कि एक एसेट्स होंगे. तो ऐसे ही हमारे इसमें एक टर्म है सेल रिटर्न. कस्टमर्स जो हैं वो हो सकता है हमें हमारे बेचे हुए, सेल किए हुए गुड्स को हमें ही वापस कर जाए. ठीक है जी. तो जब हमारी सेल आइटम्स, सोल्ड आइटम्स हमें वापस आ जाती हैं, तो हम कहते हैं सेल रिटर्न्स. और इससे हम क्या कहते हैं कि हमारा ही स्टॉक, हमारे गुड्स जो हैं हमारे पास वापस आ गए हैं, तो वो इनवर्ड्स हो गया है, तो इससे हम ये भी कहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स. ठीक है बच्चों. So this much is enough for today, and for tomorrow we will continue with this topic. But before continuing, I request you all, please अपने notes complete कर लीजिए. Please इसे अपनी notebooks पे properly लिखिए. These are very important chapter, very important chapter. So see you tomorrow. Thank you.